ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਂਡ ਇੰਪਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੰਪਲਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸਿੰਪਲ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ remains constant in absence of an applied force। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਅ ਗਨ ਆਫ ਮਾਸ m fires a shot of a mass m with velocity u, show that gun receives a recoil and find its velocity। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਨ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਨ ਆਫ ਮਾਸ m, ਇਹਦਾ ਮਾਸ m ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਟ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਟ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਯੂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਕੁਆਇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਨ ਬੈਕ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਬੈਕ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਆਇਲ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਨ ਬੈਕ ਮਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗਨ ਬੈਕ ਮਾਰੇਗੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗਨ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੈਂਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆਏਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਭਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਦੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸ਼ਾਟ, ਇਹ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੋਟਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਮਾਸਿਸ ਦੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਮਾਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਸ ਇੰਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਜੋ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ m ਹੈਗਾ ਉਹ u ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਨੇ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ, ਜੋੜਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਟ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਮੰਨ ਲਓ,
तो इनू कहता अपने टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम ये कितना होगा। जो इन्हें फायर शॉट किया तो ये नहीं पता बंदूक की वेलोसिटी, बंदूक की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, मान लो आप मान लें वेलोसिटी V मान लें इधरले पासे। हूँ कहाँ आप इधरले पासे की लोड़ बनने की आप तो शो करना है कि बंदूक पिछे जाऊगी, तो अपन पता है ना वेलोसिटी कितना, आप वेलोसिटी इधर मान ली। हूँ तुम ध्यान दे विच होवे जे वेलोसिटी इधर होवे अते वेलोसिटी का आंसर नैगेटिव आ जाए, इसका मतलब की होगा वेलोसिटी की डायरैक्शन इधरले पासे आ, इधरले पासे -2 मीटर पर सैकेंड हो गए। इसका मतलब कि पहला पढ़िया है कि वेलोसिटी जिहड़ी है पिछे बॉडी पिछे जा रही है, नैगेटिव साइन ये शो करता होंदा है कि बॉडी पिछे नूं जा रही है बैकवर्ड। हुण इधर वेलोसिटी मान ली आपां अट्रैक्शन पाइए, वेलोसिटी डायरैक्शन आप इधर मान ली, जिधर मर्जी मान लो कोई फर्क नहीं पैंदा। जो वेलोसिटी डायरैक्शन आप इधरले पासे मान ली ये V अपना नैगेटिव आऊगा, फिर उत्थों कन्फर्म हो जाएगा कि जी बंदूक की वेलोसिटी मनी अपने जे V नैगेटिव आ गए तो कन्फर्म हो जाएगा कि बंदूक पिछे जा रही है, ये शो भी करना अपने। चलो मोमेंटम की वेलोसिटी मान ली, बंदूक की गन की वेलोसिटी मान ली, फायर की शॉट की वेलोसिटी मान ली अपने, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये टोटल लीनियर मोमेंटम आ गया। देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल ये हमेशा सेम रहने, तो इतों आ गया 0 = mv + mu, इतों v की वेलोसिटी v की वैल्यू कढ़ ली अपने m - mu/m। हुण डायरैक्शन आप इधरले पासे मनी सी वेलोसिटी की नैगेटिव वैल्यू आ गई, तो इतों गल क्लीयर होगी कि जो V वेलोसिटी बंदूक की मनी सी आप गन की मनी सी गन पिछे नूं जाएगी, नैगेटिव ये शो कर रहा है, पिछे नूं कहने आप रिकॉइल। देयरफॉर नेगेटिव साइन शोस गन विल रिकॉइल, बंदूक पिछे जाएगी, तो पिछे जाने की वेलोसिटी कितनी हैगी है, वो हैगी है mu/m, दोनों गल्लां आ गई। सो कंसैप्ट तो सिंपली होगा, क्वेश्चन आप होर ट्राई करते हैं ये कि लीनियर मोमेंटम कढ़ांगे आप टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम कढ़ांगे, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम कढ़ांगे, दोनों इक्वल कर देंगे, उत्थों जो भी डाटा पूछा होगा आप कढ़ लवांगे। तो मोमेंटम कढ़ना किवें हुंदा, लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करके। तो कुछ पिछले चैप्टर के कंसैप्ट भी आउणगे इहदे विच, जिवें आपां क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन देखो ये 25 kg लाइट मशीन गन फायर्स अ शॉट weighing 100 ग्राम। इफ द रिक्वायर्ड apparatus exerts a constant force of magnitude 10 Newton, the gun moves back 8 centimeter. Calculate the muzzle speed of the shot. पहली गल जो क्वेश्चन आप कर लवेंगे ये यूनिट सेम रखने सारे अपने। हुण एक पासे kg की गल हो रही है, एक पासे ग्राम की गल हो रही है, तो आप यूनिट सेम रखने ने, ग्राम में भी kg कन्वर्ट करांगे। तो देखो दिता की होया, एक पहला मंगी सेम क्वेश्चन आ गन है जी, इसका वेट जोड़ा है 20 मास जो है 25 kg है, इन्हें एक फायर शॉट किया है, वह मास जोड़ा है वो 100 ग्राम। 100 ग्राम जो आप किलोग्राम च कन्वर्ट करना हो 1000 से डिवाइड करा 0.1 kg, ये मास हो गया शॉट का। चलो उन्होंने क्या है कि अपने रिकॉयल ऑपरेटस जोड़ा है ये जोड़ा ऑपरेटस पिया है जिहदे करके बंदूक पिछे आएगी, मतलब जो आप ट्रिगर दबावांगे, जो ट्रिगर आप दबावांगे तो वह गोले में अगे धक्केगा, ट्रिगर अगे धक्कन करके पिछे नूं फोर्स पेगी, एक्शन रिएक्शन होगा, तो वह रिकॉयल ऑपरेटस हो गया जिन्ना गोली चलती हैगी। चलो उन्हें फायर शॉट करता
ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੱਬਿਆ ਟ੍ਰਿਗਰ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਸਪੀਡ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਮਜ਼ਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਯੂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਯੂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨੇ ਉਲਝਾ ਪਾਤਾ, ਉਲਝਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਰਿਕੁਆਇਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇਹ ਗਨ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗੀ, S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 100। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। MKS ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ kg ਆ ਗਿਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਗਨ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਫਾਇਰ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੀਟਰ 0.08 ਮੀਟਰ ਬੈਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਦੋ ਡਾਟੇ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ। ਫੋਰਸ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਨ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਗਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਗਨ, ਫਿਰ ਗਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 0.08 ਮੀਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਨ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਰਿਕੁਆਇਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, V ਡੈਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ 0 ਹੋਗੀ, ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਜੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਖੜ ਗਈ, ਗਨ ਖੜ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ F ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ F ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਿਊਟਨ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ F ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਨਿਊਟਨ। ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਾਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 25 F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10, ਤਾਂ F ਆ ਗਿਆ 10/25 2/5। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 0 ਹੋ ਗਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗੀ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। 10 ਤੋਂ 0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ, 10 ਤੋਂ 0 ਬਣੇਗੀ। ਜੇ 10 ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ। ਉਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
मोशन अंडर कॉन्सटेंट एसलेशन वाला। सो ये आ गया। हुणे फॉर्मूला की लावांगे आपां, फॉर्मूला हुंदा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2f(s). फाइनल वेलोसिटी कितनी हैगी है 0, इनिशियल आपां लभनी हैगी आ 2f(s), एस हैगा 0.08। तो ये आ गया v इज इक्वल टू 4/5 इंटू 8/100। ये कट दो ਇਹਦਾ रूट, ये आ गया 8/125 का रूट। ये इन्ने मीटर पर सैकेंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकल गई अपनी। ध्यान रखना यह वेलोसिटी की डायरैक्शन इधर होगी। गल्लां सारे समझ के चलाउणियां हैगियां आपां ने। हुण कढ रहे आपां टोटल वैन फायर इज नॉट शॉट, जैदा कह लो वैन शॉट इज नॉट फायर्ड। तो टोटल लीनियर मोमेंटम फायर शॉट नहीं किया, ये भी जोड़ा हैगी सी गन भी रैस्ट से आ, ये शॉट भी रैस्ट से हैगा, इस करके फिर दोनों वेलोसिटी 0 होगी। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम जोड़ा है 0 आ गया। हुण वैन शॉट इज फायर्ड तो टोटल लीनियर मोमेंटम ये आ गया 25 इंटू यदि वेलोसिटी गल हो रही है, वेलोसिटी की लवांगे आप 8/125 का रूट माइनस, ये गल्लां ध्यान रखनी है। माइनस क्यों हैगा, ये वेलोसिटी पिछे आ, डायरैक्शन सेम रखनी है ना, माइनस साइन तां पाया कि ये वेलोसिटी पिछे जा रही है, दोनों डायरैक्शन सेम रखनी है। जे ये अगे जा रही तो ये भी अगे रखनी है। जे आपां कहीए कि v जिहड़ा हैगा वो पिछे जा रहा -2 मीटर पर सैकेंड या 2 मीटर पर सैकेंड पिछे जा रहा, तो ये डायरैक्शन चेंज कर सकते हैं। आप डायरैक्शन इधर नूं कर दो तो वेलोसिटी की पा दो -2 मीटर पर सैकेंड, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये भी लग रहा पता कि हाँ 2 मीटर पर सैकेंड पिछे जा रहा है, ये भी माइनस शो कर रहा है कि पिछे जा रहा है, तो दोनों वेलोसिटी डायरैक्शन सेम रखनी है। ये तो वेलोसिटी किधर नूं आई है अपनी पिछे नूं जा रही है, तो ये वेलोसिटी डायरैक्शन आप इधर बनानी है। जे वेलोसिटी डायरैक्शन आप इधरले पासे करांगे तो फिर यह नैगेटिव पाना पऊगा दसण वास्ते कि पिछे नूं जा रहा है, डायरैक्शन सेम रखनी है अपने। जे नैगेटिव नहीं पाते तो मतलब की बन गया कि गन जी है जो फायर शॉट करांगे तो जी गन हैगी आ वो भी अगे जाएगी, अगे नहीं जाएगी पिछे जाएगी, पिछे वास्ते नैगेटिव साइन होगा। डायरैक्शन उन्हें सेम रखनी है वेलोसिटी दी, ये भी इधर है तो ये भी इधर रखनी है। प्लस दूजा लीनियर मोमेंटम कितना आ गया मास इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कटनी है अपनी। बस आही कंसैप्ट सीगा जी। हम दोनों इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके जो आ गया वो आंसर। Therefore by principle of conservation of linear momentum, ये आ गया 0 इज इक्वल्स टू 25/125 नेगेटिव प्लस 0.08 u। तो u की वैल्यू आ गई 25.0/08 8/125 का रूट। ये ऊपर आके 100 कर लो, बाकी अंदर ले जाओ चक के, मतलब 25 इंटू 25 अंदर जाऊगा 8 बटा नीचे 8 इंटू 8 जाऊगा अंदर। बाकी जिस तरह मर्जी सॉल्व कर, थोड़ी मर्जी है, जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लो, चाहे इन्हों इदा कढ़ लो बाहर।
ये 2500 आ गया ऊपर बाई 8, ये 2√2 हो गया, ये 5√2 हो गया। (5√5) सॉरी, इन्हों डिवाइड कर लो, ये वेलोसिटी आ गई। जो बाकी सिंपल कैलकुलेशन ही कर रही हैं अपने। तो थोड़े क्वेश्चन होर देखने अपने। कंसैप्ट यही है जी, बस कल मोमेंटम होंदा मास इंटू वेलोसिटी, नवा कंसैप्ट। तो जो इनिशियल इन्हें मोमेंटम हैगा टोटल तो फाइनल ये बराबर होंगे। तो नैक्सट क्वेश्चन एक होर देखना आप, देखो ये है अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 km/h strikes another equal mass at rest and moves after impact with the speed of 7 km/h in same direction as before. Find the loss of kinetic energy due to impact. चलो काइनेटिक एनर्जी की गल आ गई, तो पिछला काइनेटिक एनर्जी का कंसैप्ट भी यूज़ करांगे आप। तो देखो डायग्राम दे दें पहला कहा कि उन्होंने एक मास हैगा, एक बॉल है जिहदा मास 50 ग्राम, हम ग्राम की गल कर रहे हैं, km/h की गल कर रहे हैं अपने MKS रखना सिस्टम सौखा रहूगा। मीटर विच रखना किलोग्राम तो सैकेंड, मीटर किलोग्राम सैकेंड से बनाना सारा अपने। तो जी आपू मास दिता होया हैगा ये हैगा 50 ग्राम, मतलब 50/1000 kg, मतलब 0.05 kg ये मास हो गया। वेलोसिटी हैगी आ 17 km/h। इसे पढ़िया होगा छोटी क्लास, नहीं पढ़िया देख लो। km/h नूं किलोमीटर विच हुंदे ने 100 मीटर, 1000 मीटर सॉरी, तो एक आर च हुंदे ने 60 मिनट, एक मिनट च हुंदे ने 60 सैकेंड्स। ये कट गया, ये कट गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, मतलब 5/18 नाल जे मल्टीप्लाई कर दी आप तो जो km/h हैगा वो मीटर/सेकंड से बन जाएगा। मतलब इनू जे आप 5/18 नाल मल्टीप्लाई कर दी, 17×5 = 85 हो गया, 18 मीटर/सेकंड ये वेलोसिटी। यूनिट सेम रखने, बस एक गल ध्यान रखनी है। हुण डायग्राम स्टेटमेंट पढ़ते हैं आप। एक बाल हैगी सी, उसका मास 50 kg मूव कर रहा सीगा। चलो डायग्राम देखो, ए बॉल आ, ए बी बॉल आ, दोनों मास सेम आ जी। तो ये वेलोसिटी जिहड़ी हैगी आ 85/18 मीटर/सेकंड मूव कर रही सी। जो मूव कर रही सी ये फस्ट पार्ट हो गया, फिर इन्हें स्ट्राइक किया, (85/18 मीटर/सेकंड ने दूजी बॉल स्ट्राइक, ये रेस्ट से सी बॉल, ये स्ट्राइक करता। स्ट्राइक करने तो तीजी डायग्राम बनेगी। हुण ये भी मूव करेगी, ये भी मूव करेगी, ये अपना कॉमन सेंस लग भी रही है। एक बॉडी रेस्ट से हैगी, इत्थे एक बॉडी आप थ्रो की, जो टक्कर होएगी, जो इंपैक्ट होएगा तो ये भी बॉडी मूव, जो बॉडी रेस्ट से हैगी वो भी मूव करना शुरू कर दूगी। तो ये भी हो सकता कि मूव करी जाए, ये दसिया है उन्होंने। जी पिछली बॉडी हैगी आ हुण वो 7 km/h, 7 km/h कितना हो गया, 7 × 5/18 करता आपने 35/18 मीटर/सेकंड। 7 km/h मीटर/सेकंड कन्वर्ट किया, इन्नी वेलोसिटी नाल मूव करेगा। इस तो बाद इंपैक्ट टक्कर होने तो बाद यदी वेलोसिटी नहीं गिवन हैगी, वेलोसिटी चलो v ले लेने आप। हुण की कहा उन्होंने, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस मतलब की आ, पहला काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, टक्कर होने तो बाद, इंपैक्ट होने तो बाद काइनेटिक एनर्जी घट जूगी। काइनेटिक एनर्जी होंदी की हैगी आ, काइनेटिक एनर्जी होंदी हैगी आ 12 mv²। पिछला कंसैप्ट है ये काइनेटिक एनर्जी कटांगे, ये काइनेटिक एनर्जी कटांगे। जो आप देखिए पहला काइनेटिक एनर्जी
10 जाउल सीगी, मान लो बाद विच 8 जाउल रह गई। वैसे ही गल कर रहे टक्कर होने तो पहला 10 जाउल सी काइनेटिक एनर्जी, टक्कर होने तो बाद 8 जाउल रह गई। इसका मतलब की बन गया काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, घट गई। कितनी घटी है वो किवें कड्डांगे आपां, जिन्नी पहलां सी जिन्नी बाद चों सी इन्हां नूं माइनस कर देवांगे तो कहांगे कि इन्नी जिहड़ी हैगी आ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। हुण इहदी काइनेटिक एनर्जी किवें कड्डांगे, ओवरऑल कड्डनी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर। ये बिफोर इंपैक्ट ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो आफ्टर इंपैक्ट किवें कड्डा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर। बिफोर निकल गई, आफ्टर निकल गई, सबट्रैक्ट कर देवांगे, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा अपने को। हुण ये तो काइनेटिक एनर्जी निकल जू, क्यों मास पता दिता है, वेलोसिटी पता, ਇਹਦਾ मास पता, वेलोसिटी कितनी है 0 बिकॉज ये रेस्ट से है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल गई बिफोर इंपैक्ट। तो आफ्टर इंपैक्ट ਇਹਦਾ मास पता आपां नूं, वेलोसिटी दी हुई है, बस आह वेलोसिटी रहेगी कटनी आपां। जे वेलोसिटी निकल जाए फिर काम सौखा ही आ, बिफोर इंपैक्ट कर लवांगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आफ्टर इंपैक्ट कर लवांगे, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे अपना आंसर। हुण ये कड्ढनी किवें आपां ने, ये कड्डांगे आपां कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नाल। वो किवें देखो, बिफोर इंपैक्ट टक्कर होने तो पहला टोटल लीनियर जैन टोटल इनिशियल कह लो, चलो लीनियर मोमेंटम ये कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी। ये पहले का आया, प्लस दूजा कर लवांगे मास इंटू वेलोसिटी। इन्हू इदा ही रहने दो, फिर सॉल्व कर लवांगे। चलो इदा आ जाएगा 5/100 इंटू 85/80, इन्हू इदा ही रहने दो। हुण आफ्टर इंपैक्ट टक्कर होने तो बाद टोटल इनू फाइनल कह दो, फाइनल लीनियर मोमेंटम, चाहे टोटल कला लीनियर मोमेंटम कह लो, जिस तरह मर्जी कह लो। ये आऊगा मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। ये चों 5/100 कॉमन कर लो, ये आ जाएगा 35/18 प्लस बी। इस तो बाद therefore by principle of conservation of लीनियर मोमेंटम, ये की होगा, जिहड़ा इनिशियल लीनियर मोमेंटम होगा वो फाइनल के बराबर होगा। ये कट गया, वी आ गया अपने को, सबट्रैक्ट करता 50/18। तो जो भी आ गया अपना इनू कर लो, चाहे 25/9। तो देयरफॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आऊगी, पहला हाफ एम वी, पहला सी इनिशियल वेलोसिटी 85/18, हाफ एम वी स्केयर। दूजा जिहड़ा मास सीगा उस टाइम जे पिछे पढ़िया आपां हुणी, वो रेस्ट से सीगा हाफ एम वी स्केयर। ये आ गया अपने को 5/200 85/18 का स्केयर। मैनू 50/18 रहने दो, चलो सौखा रहूगा। ये इनिशियल आ गई। हुण कड्डांगे आपां फाइनल काइनेटिक एनर्जी।
दोने मास मूव कर रहे हैं। पहला मास जोड़ा है हाफ mv², ये मूव कर रहा है 35/18 की स्पीड नाल, तो दूजा मास मूव कर रहा ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੱਢਿਆ है हाफ m, ये कर रहा 50/18 की स्पीड नाल। इन्हों कॉमन काट लो, ये आऊगा 5/200 35/18 का होल स्क्वायर प्लस 50/18 का होल स्क्वायर। ये आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई फाइनल। लॉस होया मतलब कि ये ज़्यादा होगी घट होगी, लॉस किवें कड्डांगे, ये सबट्रैक्ट कर देवांगे। देयरफॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये आ जाएगी जी इज इक्वल्स टू 5/200 85/18 का होल स्क्वायर माइनस 5/200 35/18 का होल स्क्वायर प्लस 50/18 का होल स्क्वायर। ये कॉमन काट लेना सौखा हो जाएगा। कॉमन की निकलता, एक तो 5 कॉमन निकलता 5/200, एक 18 का स्केयर कॉमन निकलता नीचों, एक होर काट लो, ये 5 कॉमन निकल जाएगा 5 मतलब कि 5 का स्केयर कॉमन निकल जाएगा, इत्थे बनेगा 17 का स्केयर माइनस 7 का स्केयर माइनस 10 का स्केयर। बाकी चेक कर लो जो भी अपना आंसर आ जाएगा जी। चलो इन्हू सॉल्व कर लवेंगे। बाकी ये दे रहे हैं 25/200 इंटू 324 17 का स्केयर कितना जी 289 माइनस 49 माइनस 100 25/8 5/8 इंटू 324 149 140 यदि कटिंग कर लो जिनी होंगी हैगी, ये 70 35 ये 2 5 इंटू 35/2 इंटू 324 तो जो भी आ गया आंसर है ये जाओ। चलो ठीक है जी, ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो, ये एक्सरसाइज सारी कंप्लीट कर लियो, तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो। थैंक यू।